Good morning, children. How are you? I hope you will fine. So now welcome to the Maharashtra Board, your fifth standard, subject EVS 2. And the lesson name is lesson of 5, evolution of mankind. So listen in the last lesson in the evolution, you also seen the animals have two types is the vertebrate and invertebrate. Invertebrate is the without backbone called invertebrate and with backbone called vertebrate. Under vertebrate is the main types aquatic animals, amphibians, reptiles, mammals, and last one is the apes. So listen, in the app, we see the app like as a human. ऐप तो थे जैसे कि ह्यूमन थे वैसे हमारे ऐप थे एंड द ऐप इज द फर्स्ट टाइम फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट द ऐप जो थे वो फर्स्ट टाइम कहाँ फाउंड हुए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एंड द चेंजेस इन द ह्यूमन स्पीशीज कब ह्यूमन में चेंज हुए थे तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमेटिव मैन प्राइमेटिव मीन्स first, that means the first man. So in the last lesson we have seen the acts and this lesson we have seen their next stages from Homo habilis to Homo sapiens sapiens. Under this is the 5 stages. First is the Homo habilis, second is the Homo erectus, third one is the Neanderthal man, fourth is the Homo sapiens, and the last is the Homo sapiens sapiens. So, students, first we see the pictures of this 5 types of the humans. So, students, we look at the pictures is the human stages. First is the we also seen the OH in the 4th lesson evolution, and this lesson we see the from Homo habilis to Homo sapiens sapiens. First is the Homo habilis, next stage is the Homo erectus, and after that Neanderthal, after that, and last one is the Homo sapiens sapiens. These 5 stages you see in this lecture. इस लेसन में हम लोग ये 5 स्टेज देखने वाले ह्यूमंस के फर्स्ट क्या है होमो हैबिलिस, सेकेंड होमो इरेक्टस, थर्ड इज द निएंडरथैलेंसिस, फोर्थ इज द होमो सैपियंस एंड लास्ट इज द होमो सैपियंस सैपियंस. ये 5 स्टेज हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट कम टू द बोर्ड एंड लुक एट द फर्स्ट इज द होमो हैबिलिस. So student, we also see the 5 stages from Homo habilis to Homo sapiens. So look at the board in the first is the ape. We also see in the 4th lesson in the evolution. And this lesson we see in the Homo habilis, Homo erectus, Homo erectus. Third and fourth is the Homo neanderthalis, fifth is the Homo sapiens, and sixth is the Homo sapiens sapiens. This is the 5 steps we have seen in this lesson. First is in the Homo habilis. Now first is the Homo habilis. So actually Homo. What do you mean by Homo? Homo means man. In the Latin word Homo, that means man. And habilis means man who uses this hand skillfully. मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों को अच्छे से वर्क कर सके, अपने हाथों से वर्क कर सके. दिस कॉल्ड होमो हैबिलिस. नाउ लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट इज द होमो मीन्स मैन, सेकंड इज द हैबिलिस. होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स who uses his hand skillfully, and that means the skilled human. What do you mean by skilled human? The specific of human who could use their hand skillfully means ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ को skillfully अच्छे से वर्क करता हो. दिस इज कॉल्ड skilled human. And this human
This Homo habilis first time found in the Tanzania and Kenya in the continent of Africa. फर्स्ट टाइम कहाँ पे फाउंड हुए थे? तंजानिया एंड केन्या इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। एंड वो फाउंड किसने से फाउंड किया था? द साइंटिस्ट लुइस लीके। द साइंटिस्ट लुइस लीके who discovered this species named it Homo habilis। साइंटिस्ट लुइस लीके थे, उन्होंने स्पीशीज को डिस्कवर लोगों के सामने लाया था एंड दे आर गिव द नेम टू द होमो हैबिलिस। व्हाई गिवन द नेम होमो हैबिलिस? होमो हैबिलिस नाम क्यों दिया गया था? बिकॉज he found some tools made by them with their fossil। इसके साथ ही साथ जो होमो से फाउंड होते इसके साथ ही साथ उसके कुछ टूल्स, कुछ हथियार भी फाउंड हुए थे उनके साथ में। तो जितने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने होमो में तो मैं नाम दिया, बट हैबिलिस नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हथियार फाउंड हुए थे, कुछ टूल्स मिले थे। अब जब टूल्स मिले थे दैट मीन्स कि वो अपने हाथों का यूज करते होंगे, इसलिए उन्होंने नाम दिया। तो हैबिलिस में वो यूजेस इट हैंड स्किलफुली, तो दे गिवन द नेम इज होमो हैबिलिस। And now next is the Homo habilis, and he stand on 2 feet and walk। जो Homo habilis थे stand on 2 feet, ये दोनों पैर में खड़े होने लगे। आपको पता है ऐप के थे तो बंदर लाइक बंदर की तरह से वो दोनों पैर पर नहीं थे, चारों पाँव से चलते थे। बट जो Homo habilis थे stand on 2 feet and walk, वो दो पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। And his spine was slightly bent and not quite straight। इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी स्पाइन वो स्लाइटली बेंट, थोड़ी झुकी हुई थी और वो मतलब सीधी नहीं थी, वो थोड़ी झुकी हुई थी, पूरी तरह से सीधी नहीं थी, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था होमो हैबिलिस को। एंड देयर ब्रेन वाज बिगर देन द एप, और जो इनका ब्रेन था, जो इनका दिमाग था, जिसे बिगर देन द एप के मुकाबले क्या थे? थोड़े बड़े थे। बट हिज फेस एंड लिम्स वेयर सिमिलर टू एप। बट हिज फेस, बट लेकिन क्या था, उनका जो चेहरा था एंड लिम्स, मतलब उनकी जो शरीर की बनावट थी वो सिमिलर टू एप, वो एप की तरह ही थे, वो एप से ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे। सिर्फ उनका ब्रेन थोड़ा उससे डेवलप हुआ था, उससे मतलब बिग था ब्रेन। एंड आफ्टर द स्टोन टूल्स में बच्चों जो स्टोन बनाए थे, जो स्टोन टूल्स हमने बनाए थे, दिस स्टोन्स नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल। ये बिग एनिमल्स की हंटिंग के लिए मतलब यूजफुल नहीं थे, ये बिग एनिमल यूजफुल नहीं थे। They had limited uses such as scraping meat from the skin of dead animals or breaking bone to get the marrow। वो क्या करते थे? ये जो टूल्स इनके थे, ये टूल्स बड़े एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं थे, बट इन टूल्स का यूज करते थे ब्रेकिंग द बोन, हड्डियों को तोड़ने के लिए, एंड डेड एनिमल्स मैरो, उनकी हड्डियों में जो गुड्डे होते उसे निकालने के लिए, उसके लिए वो इस टूल्स का यूज करते थे। एंड आफ्टर दैट होमो हैबिलिस फॉरेजर, जिसे फॉरेजर से, एंड ही हैड द लेप्टोन ऑफ एनिमल्स दैट हैड बीन हॉन्टेड बाय अदर एनिमल्स। ही लेप्ट एनिमल्स दैट मैन हॉन्टेड बाय अदर एनिमल्स। ये कैसे थे? जो दूसरे एनिमल्स के द्वारा हॉन्टेड बाय अदर, दूसरे एनिमल के द्वारा जो शिकार हुआ रहता था, उस शिकार को ये अपने पेट के भोजन के लिए यूज करते थे, क्योंकि ये बिग एनिमल्स का हंटिंग नहीं कर पाते थे। एंड दे हॉन्टेड स्मॉल एनिमल, बट जो स्मॉल छोटे एनिमल थे उनको हॉन्टेड कर पाते थे। एंड गैदर एग, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट टू
ईट। और स्मॉल एनिमल्स के साथ साथ एग जो पक्षियों के अंडे होते थे, गैदर एग्स, वाइल्ड फ्रूट जो जंगल से फ्रूट वगैरह मिलते थे, एंड रूट कंदमूल के कंदमूल उसका भी यूज करते थे और मतलब अपने भोजन के लिए इसका यूज करते थे। तो उन्होंने होमो हैबिलिस कैसे थे, वो किस तरह से आए, उन्होंने किसने फॉर्म किया, द फाउंडर लुइस लिखे साइंटिस्ट who discovered the and given the name to Homo habilis. Homo means man, habilis means who uses his hand skillfully, जो अपने हैंड को skillfully यूज करते हो। एंड why we given the name Homo habilis, नाम का नाम क्यों मिला, the some tools found by made by them, उनके द्वारा कुछ टूल्स फाउंड हुए थे। जब टूल्स फाउंड हुए तो दैट मीन्स इसका मतलब हो कि अपने हैंड का यूज करते होंगे टूल्स के लिए, तो इसलिए उनको उसका नाम हैबिलिस मतलब होमो हैबिलिस दिया। एंड इसकी मेन क्वालिटी क्या थी, फिर स्टैंड ऑन 2 फीट एंड वॉक। आपको पता है एट 2 फीट पे नहीं तो 4 फीट पे बच गया है, स्टैंड 2 फीट एंड वॉक, 2 पैर को खड़े को चलने लगे। एंड दिस स्पाइन वाज स्लाइटली बेंड, इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी थोड़ी बेंड थी, झुकी हुई थी। इन नॉट क्वाइट स्ट्रेट, तो सीधी स्ट्रेट नहीं थी। एंड देयर ब्रेन वाज बिगर देन द एग, और जो उनका ब्रेन था वो एग के मुकाबले थोड़ा बिग मतलब बड़ा था। बट हिज फेस एंड लिम्स वर सिमिलर टू एग, बट इनका जो फेस था और लिम्स था वो सिमिलर टू एग, वो एग की तरह था। And they not haunted in the big animals but haunted in the small animal, वो बड़े एनिमल को haunted नहीं करते थे, बट जो स्मॉल एनिमल थे उनको शिकार वो कर लेते थे। एंड गैदर एट वाइल्ड फ्रूट्स एंड रोज टू ईट, इसके अलावा जो पक्षी गंडे थे, वाइल्ड फ्रूट थे और जो रूट्स थे उसको अपने ईट मतलब भोजन के लिए वो यूज करते थे। एंड नाउ नेक्स्ट इज द होमो इरेक्टस। What is the difference in the Homo erectus between the Homo means also Homo means man and erectus? Erectus means who stand erect and straight. Erectus का मीन क्या था, who stand erect मतलब जो पूरी तरह से सीधे जैसे खड़े हो गए, मतलब इन्हें कर सकते हैं सीधे चलने वाले इंसान कहते हैं। ये हु स्टैंड इरेक्ट मतलब जो पूरी तरह से सीधे खड़े हो गए। आपको पता है ये कैसे थे, ये स्लाइटली बेंड को झुके हुए थे, बट ये कहते हैं हु स्टैंड इरेक्ट पूरी तरह से खड़े हो गए। एंड देयर ब्रेन वाज मोर डेवलप्ड देन द होमो हैबिलिस के मुकाबले जो इनका ब्रेन था मोर डेवलप, थोड़ा उनसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। एंड दे लिव इन ग्रुप, और ये क्या करने लगे, होमो इरेक्टस लिव इन ग्रुप, धीरे धीरे ग्रुप में रहने लगे, धीरे ग्रुप में रहने लगे। एंड दे न्यू अबाउट फायर, उन्हें फायर का मतलब जानकारी हुई, जो फायर आग की जानकारी हुई, अबाउट फायर। बट कैसी जानकारी, हैविंग सीन वाइल्ड फायर ह्यूमन न्यू अबाउट फायर, जो वाइल्ड फायर जंगलों में जब आग लगने लगी तो उसे देखकर उन्हें फायर की मतलब आग की जानकारी प्राप्त हुई। एंड आफ्टर दैट दे मेड टोटल टेक्निक ऑफ फैचिंग बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज विद दैट फायर। वो क्या करते थे, कहीं पर ब्रांचेस ऑफ बर्निंग, कहीं भी जलती हुई ब्रांचेस मिलती थी, लकड़ियाँ मिलती थी, उसे लाके वो फायर का यूज करते थे, उसे लाके वो फायर का यूज करते थे। ड्यूरिंग विच टाइम मोस्ट ऑफ द वाज कवर्ड विद द आइस, बट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ पार्ट कवर्ड विथ आइस। इस समय क्या थे, अर्थ के मोस्टली जो पार्ट थे वो आइस से कवर्ड मतलब बर्फ से ढके हुए थे। एंड therefore the climate was extremely cold, जब पूरे मतलब
बर्फ़ से ज़्यादा ढके हुए थे, जो क्लाइमेट कोल्ड हो गया, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा मतलब फायर का यूज करने लगे थे। बट उन्हें ये जो फायर था होमो इरेक्टस could survive in the extremely cold climate because he learned to use fire. तो फायर का यूज कर रहे थे, बट जो फायर था he had not yet mastered the technique of making fire. टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर हैड नॉट मास्टर, मतलब उन्हें ये फायर का यूज करने नहीं आता था, मतलब कैसे मतलब उसे जलाना है, टेक्निक उसका क्या है उसको नहीं पता था। बट सम ब्रांचेस, जो कुछ ब्रांचेस में लकड़ियाँ मिलती थी ट्रीज की जली हुई, वो उसका यूज कर लेते थे, पर उन्हें उसका फायर का मतलब कैसे टेक्निक कैसे जलाना है ये उन्हें नहीं पता था। किसे? होमो इरेक्टस को ये नहीं पता था। एंड आफ्टर दैट टूल्स मेड बाय होमो इरेक्टस वेयर मोर डेवलप्ड इंटीमेटली कंपेयर टू द दोज ऑफ द होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के मुकाबले जो इनके टूल्स थे थोड़े मोर इनकी ज़्यादा डेवलप हुए, इनके टूल्स थे मोर डेवलप, कुछ ज़्यादा डेवलप हुए। मेक टूल्स लाइक हैंड एक्स, जैसे कि हैंड एक्स हाथ मतलब हैंड एक्स का वो यूज करने लगे, थोड़े मोर डेवलप मतलब ज़्यादा डेवलप हुए। किससे? इनसे, क्योंकि इनके जो टूल्स थे वो इतने डेवलप नहीं थे, बट उनका हैंड एक्स वगैरह बना के थोड़ा उनसे डेवलप हुए। एंड आफ्टर दैट remains of homo erectus have been found along the अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। ये जो होमो इरेक्टस से कहाँ फाउंड हुए हैं? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। एंड होमो इरेक्टस वर फाउंड इन द तंजानिया एंड केन्या इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, बट Homo erectus is found in the Africa, Asia and Europe. After that, next we see the Neanderthal man. You also got the Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis means Neanderthal man. The remains found at Neanderthal. It's a place in Germany. ये place है जर्मनी में। And this place is given the name the Neanderthal man. इस place की वजह से इन्हें क्या मिला नाम? Neanderthal man इन्हें नाम मिला। इसकी वजह से इसकी मतलब जो place है Neanderthal place है इन जर्मनी, इस place की वजह से they given the name of the Neanderthal man. This is the most powerful थे physically बिग एंड स्ट्रॉन्ग। अगर देखा जाए फिजिकली तो एक कहते हैं बिग, मतलब उनसे बड़े भी थे और थोड़े स्ट्रॉन्ग भी थे, तो बड़े भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। एंड कॉमनली नोन एज निंडरथाल मैन बिकॉज ही रिमेन्स वेल फर्स्ट फाउंड इन निंडरथाल। मैं आपको बताया कि फर्स्ट फाउंड का हुआ तो निंडरथाल इन जर्मनी, तो दैट इज गिवन द नेम इज द निंडरथाल मैन। एंड हिज ब्रेन वाज मोर डेवलप्ड। मैंने आपको भी बताया कि ये फिजिकली बिग है और स्ट्रॉन्ग है। एंड आफ्टर दैट हिज ब्रेन वाज मोर डेवलप्ड देन द होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के मुकाबले इनका ब्रेन मोर डेवलप हुआ। जैसे कि होमो हैबिलिस के हिसाब से मोर डेवलप ब्रेन द होमो इरेक्टस एंड होमो इरेक्टस के हिसाब से मोर डेवलप ब्रेन द निंडरथाल मैन। होमो इरेक्टस से ज़्यादा डेवलपमेंट ब्रेन किसका था? निंडरथाल मैन का था। एंड द निंडरथाल प्राइमरी लिव्ड इन केओस। स्टार्टिंग में कहाँ रहने लगे? केओस में, अर्थात गुफे में रहने लगे। एंड दे मेड टूल्स बिग पीपल्स एज वेल फ्लेग स्क्रैप ऑफ देम बोन और वुडन शेप। कुछ टूल बनाने लगे मेड वेपन्स लाइक जैसे कि स्पीयर, एक्स, एटसेट्रा। इसमें समझते हो आप लोग भाला, एक्स, कुल्हाड़ी, ये ऐसे कुछ वेपन्स को धीरे धीरे बनाने लगे। एंड
नेक्स्ट इज द निंडरथाल हॉन्टेड बिग एनिमल। अब जब इनके पास स्पीयर्स है, एप्स है, तो ये जो हॉन्टेड द बिग एनिमल, ये बिग एनिमल्स मतलब बड़े एनिमल्स का भी हॉन्टेड मतलब शिकार धीरे करने लगे और वहाँ से धीरे डेवलप होने लगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, होमो हैबिलिस कैसे थे, दे कैन नॉट हॉन्टेड बिग एनिमल। होमो इरेक्टस भी उतने नहीं थे, बट होमो निंडरथालेसिस मीन्स निंडरथाल मैन क्या हो रहे थे, ही हॉन्टेड द बिग एनिमल, बड़े एनिमल्स का भी शिकार करने लगे। एंड दे यूज स्टार्टर्स मेड फ्रॉम स्टोन स्क्रैप that had of dead animals जो थे उनके भी यूज करने लगे। एंड दे यूज लेदर क्लॉथिंग, और जो उनके लेदर थे, जो उनके लेदर में चमड़े निकलते थे डेड एनिमल्स के, यूज द क्लॉथिंग मतलब उन कपड़े के रूप में वो यूज करने लगे। एंड दे एट मीट रोस्टेड फ्रॉम फायर, और जो भोजन करते थे मीट, जो मीट था उसे वो रोस्टेड करने लगे, उसे वो रोस्टेड में पका के खाने लगे। अगर रोस्टेड करने मीन्स दैट मीन्स दे न्यू आर्ट ऑफ मेकिंग फायर, मतलब उन्हें आर्ट मतलब मेकिंग फायर, उन्हें आग जलाने की जो तरीका है वो उन्हें मालूम पड़ चुका था, किससे, निंडरथाल मैन को। एंड आफ्टर दैट द निंडरथाल मैन हैड डेवलप्ड सम आर्टिस्टिक स्किल्स, कुछ आर्टिस्टिक में डेवलप हुए थे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो क्या कहते थे, म्यूचुअल कम्युनिकेशन के लिए दे प्रोड्यूस ग्रांट एंड अदर प्राइमरी साउंड, तो क्या हुआ, ग्रांट और अदर प्राइमरी साउंड प्रोड्यूस करने लगे, ब्लूटूथ के अंदर दूसरे तरह की आवाज़ें वो निकालने में सक्षम होने लगे, ऐसे कुछ साइंटिस्ट लोग का मानना है। एंड दे हैड हाउएवर इट इज नॉट नोन वेदर दे हैड डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थॉट विद द हेल्प ऑफ वर्ड। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो वो है उनको लैंग्वेज से ज्ञान होगा, ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते, बट ग्राउंड से अदर प्राइमरी साउंड निकलना सीख गए थे, कुछ साउंड निकलना वो सीख गए थे। एंड वेरी नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ डाइट द निंडरथाल टूल्स हॉर्न एक्सेट्रा, और जैसे जो मरते रोने करने लगे, हम जैसे स्टेबलिश रिचुअल ऑफ बर्निंग द डेड, अब उनका जो डेड था उन्हें जो मतलब क्या दफनाने लगे, बट दफनाने से पहले प्रथा हो गई, रिचुअल से प्रथा हो गई, उसमें कुछ नियम आ गए, दैट मीन वेरी नंबर ऑफ ग्रुप डाइड द निंडरथाल टूल्स हॉर्न एक्सेट्रा, मीन्स वो जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ साथ उनके जो टूल्स थे वो भी वहाँ पर वो दफनाने लगे। एंड बिफोर इट इंडिकेट दैट द निंडरथाल हैड एस्टैब्लिश्ड सम रिचुअल्स ऑफ बरिंग डेड, जिससे क्या होता था, इंडिकेट होता था कि जो मरे हुए लोग हैं इनमें भी कुछ रूल्स थे। And in the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrated to continents of Europe and Asia. इसके बाद क्या हुआ, जो निंडरथाल थे ये अफ्रीका से क्या होने लगे, लेफ्ट होने लगे और यूरोप और एशिया में माइग्रेट, मतलब यूरोप और एशिया में आके धीरे बसने लगे। And actually had the face of different environment, और जिनका फेस था वो भी environment के हिसाब से डिफरेंट में चेंज होने लगा। They had to adopt new ways of living and finding food, therefore they went the modifying and improving the tools that will enter their life. अब
वहाँ पर मीन्स नए हथियार वहाँ पर बनाने शुरू कर दिए। एंड however improvement in the took take place over thousand of years, और ये पूरा इम्प्रूवमेंट होने में उनको थाउजेंड ऑफ ईयर्स में हजारों साल लग गए। आफ्टर दैट होमो सेपियंस इज द नेम यूज्ड फॉर ह्यूमन मोर एडवांस देन निएंडरथाल। इसके बाद निएंडरथाल बोल के होमो सेपियंस आने वाले हैं। होमो सेपियंस आए, वो थोड़े ज़्यादा उनसे डेवलप होने लगे एंड दैट मीन्स होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल। अब जो होमो सेपियंस से क्या थे, इंटेलिजेंट थे और इंटेलेक्चुअल, मतलब इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो वी कैन लर्न अबाउट मोर इन लेटर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो होमो सेपियंस है उन्हें हम बाद में देखने वाले हैं। टुडे स्टूडेंट इन दिस video we have seen the Homo habilis, Homo erectus and Neanderthal man. And use the different Homo habilis is the man who uses his hand skillfully and their span was bent, जो electricity से bent थी। But Homo erectus means who stand erect, वो सीधे खड़े हो गए and their brain was more developed than the Homo habilis का जो ब्रेन था ज़्यादा डेवलप हुआ। फिर निएंडरथाल रहा है। निएंडरथाल क्या थे, फिजिकली बिग और स्ट्रॉन्ग थे और जो उनका ब्रेन था वो इन दोनों के अपेक्षा ऐसे बोले तो होमो इरेक्टस से भी ज़्यादा डेवलप हुआ। तो स्टूडेंट इन दिस लेसन वी सीन द होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथाल man, and the next video we have seen the Homo sapiens and Homo sapiens sapiens. So dear friend, before I finish this video, your most important your homework. So write down your homework. The homework first question is, what does Homo erectus mean? What does Homo erectus mean? We also see the Homo erectus. Homo erectus means who stand erect. Who stand erect is the Homo erectus. Next is the second question. Who is said to have first made tools like the hand axe? Who is said to have first made tools like the hand axe? तो स्टूडेंट their answer is the, को पता है इसका आंसर क्या, मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो कंप्लीट योर होमवर्क एंड सेंड ग्रुप ऑन फ्राइडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।